নীতিশ কুমাৰ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই কি অৱস্থা হৈছে বিজেপিৰ লগত থাকি তাৰ তুলনামূলকভাৱে কিছু তথ্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এটা সময়ত যেতিয়া অসমত বিজেপিৰ কোনো অস্তিত্বই নাছিল, সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি আছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। তেতিয়া বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিল ৰাজনাথ সিং। সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেতিয়াও আমাৰ মনত আছে সেই বিশেষ দিনটোলৈ, যিটো দিনত ৰাজনাথ সিং আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মাজত বুজাবুজি হৈছিল, এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই সংবাদমেলত দেখা গৈছিল যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অধিক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিল আৰু অগপক কম আসন দিছিল, যদিও বিজেপিৰ ইয়াত কোনো অস্তিত্ব নাছিল। সেই সময়ত তেতিয়াৰ সভাপতি ৰাজনাথ সিঙে কৈছিল যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি বিগ ব্ৰাদাৰ আৰু নেক্সট বিধানসভা নিৰ্বাচনত এওঁলোক হ'ব বিগ ব্ৰাদাৰ। কিন্তু পৰৱৰ্তী বিধানসভাত দেখা গৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত বিগ ব্ৰাদাৰৰ খেল নহ'লগৈ। আচলতে অসম গণ পৰিষদৰ বুকুচাত সেই প্ৰথম আৰম্ভ কৰি বিজেপি অসমত ৰাজনীতিৰ খোপনি পেলিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত বিজেপি অসম গণ পৰিষদতকৈ শক্তিশালী স্থিতিত অৱতীৰ্ণ হ'ল। বিটিআৰডি নিৰ্বাচন বা বিটিআৰ নিৰ্বাচনত কোন জিকে কোন হাৰে পিছৰ কথা, কিন্তু এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এই ধৰণৰ তৎপৰতা কৰি এটা নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব বিচাৰিছে যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন BPF-এ যদিহে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰে, তেনে অৱস্থাত বিজেপিয়ে অকলেই খেলি এই নামনি অসমৰ ৪-৫খন আসনো যদি লাভ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে নতুন সংখ্যা আহিব। সেই সংখ্যাৰ বাবে এই তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হৈছে আমি সকলোৱে জানো। বিহাৰত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হ'ল সকলোৱে জানে। বিহাৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল বিহাৰৰ কোনো জ্ঞান নথকা বহু নেতাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বিচাৰিছিল। অসমৰ পৰাও কেইবাজনো নেতাই গৈ বিহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। বিশেষকৈ ৰকিবুল হুছেইনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল। ৰাহুল গান্ধীতকৈ বয়সত বহু ডাঙৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিমান নিৰ্বাচনী সভাৰ আয়োজন কৰিলে, ৭০খনটাকৈ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অকলে নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সিমান সংখ্যক মোদীতকৈ বহু কম সংখ্যক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী। আজি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা সুচাৰ হৈ পৰিছে। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত কপিল চিবালে এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাহুল গান্ধীক যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে আৰু তাক পি চিদাম্বৰে ৰিটুইট কৰিছে। অৰ্থাৎ পি চিদাম্বৰম, কপিল চিবাল আদি নেতাই ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকা সমালোচনা কৰিছে। এইখিনি সময়তে লালু প্ৰসাদৰ দল RJD ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা শিৱানন্দ তিৱাৰীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে বিহাৰ বিধানসভা কংগ্ৰেছে মুঠেই গুৰুত্বই নিদিলে। কেৱল বিহাৰ বিধানসভা নহয়, বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মুঠেই গুৰুত্ব নিদিয়ে। নিৰ্বাচন যেতিয়া চলি আছিল, ৰাহুল গান্ধী তেতিয়া ব্যস্ত আছিল হিমাচল প্ৰদেশত থকা এটা ফাৰ্ম হাউচ, য'ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ হৈ তাত পিকনিক খোৱাত ব্যস্ত আছিল। এই বক্তব্যৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক বতৰত যথেষ্ট আলোচনা চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমানৰ আগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাই তেওঁৰ কিতাপখনত ৰাহুল গান্ধীক এজন নাৰ্ভাছ ছাত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল, যিজন ছাত্ৰ অবিচলিত ছাত্ৰ, যিজন ছাত্ৰই শিক্ষকক নিজকে বৰ জানো বুলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও কাৰ্যত একো নাজানে বুলি ওবামাই কৈছিল। এইবাৰ শিৱানন্দ তিৱাৰীয়ে কৰা বক্তব্য অতি ভালকৈ মন দি শুনক। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो पिछला, किस तरह से अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां जो है कितने दिनों तक लटका रहा मामला सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने शरद पवार से की पार्टी से ज्यादा सीटें आपने ली और आप जो है शरद पवार की पार्टी से कम विधायक जीता पाए। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, इसके बारे में कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो गई है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद गुलाम नबी आजाद सीनियर नेता हैं, हमारे जैसे आदमी के मन में भी उनके प्रति आदर है। हम कश्मीर गए थे तो वहां उस समय जो गवर्नर थे
उन्होंने उनसे हमने पूछा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है आपके बारे में, उनके बारे में क्या राय है। तो उन्होंने एक नेता का नाम लिया जो चीफ मिनिस्टर भी थे, कहा कि उसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद ही जो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो है यहाँ कश्मीर में हुए। तो उनके घर पर मीटिंग हुई, कपिल सिब्बल वगैरह, शशि थरूर, मैंने मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, ये सब लोग बैठे। सब लोगों ने मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने सब पार्टी की जो हालत है उसके बारे में चिंता प्रकट किया। सब लोग कांग्रेस के प्रति जीवन भर जो है लॉयल रहे हैं। यानी आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। हम लोगों के जैसा आदमी कोई चिंतित नहीं है। लालू यादव ने कहा था एक बार बहुत मजबूती के साथ, जब उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस वालों की बोलती बंद थी और लालू यादव ने कहा था कि सोनिया जो है देश की बहू है। तो हम लोगों को कांग्रेस से कोई, हम मानते हैं कि कांग्रेस आज के दिन भी उसका फुटप्रिंट जो है कई राज्यों में है। तो इसलिए होती है कि सामने जो राजनीति हो रही है, अभी जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो जो राजनीति कर रही है उससे लोकतंत्र पर खतरा है, ये ह्यूमन राइट्स पर, सिविल राइट्स पर खतरा है। तो सबको चिंता हो रही है। जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म खत्म हो रहा है, उसको खत्म करने की साजिश हो रही है। तो आप कांग्रेस अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगी, ठीक नहीं करेगी, और हम सोनिया गांधी से कह रहे हैं, अभी तो फॉर्मली औपचारिक रूप से अध्यक्ष वही हैं। वे एक समय कांग्रेस जो है नीचे लुढ़कती जा रही थी तो सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथ में लिया और पार्टी को फिर से खड़ा किया। आज जो है वर्किंग प्रेसिडेंट वही हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे, भाई रास्ता निकालिए। उठाने का तो एक अलग बात है। 3 दिन आप आए, 2-2 सभाएं आपने की। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 बरस बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। नहीं तो खबर तो शुरू में आई थी कि प्रियंका जी भी आने वाली है, क्यों नहीं आई भाई? और यही हालत है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका जी प्रभारी हैं, वहां 4 सीटों पर बाई इलेक्शन जो अभी हुआ 6 सीट पर, उसमें 4 में ये क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो उनको खुद समझ में आनी चाहिए कि पार्टी का राहुल गांधी कर क्या